Hello students, class 11th, physics, chapter is gravitation, topic is orbital velocity of satellite. आज की क्लास में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और इसके लिए डेरिवेशन, और फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है किसी भी सैटेलाइट के लिए? It is defined as the velocity required to put the satellite into its orbit around the अर्थ के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट को घुमाने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए, दैट वेलोसिटी इज नॉन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। सपोज this here earth, and let the radius of earth is, suppose, this capital R, and mass of the earth is capital M, and this is the distance from the center R, and from this point a satellite of mass small m is projected। इस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट करें, इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें जिससे कि ये हमारा सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर दे। तो दिस मिनिमम वेलोसिटी इज नोन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। हमने सपोज किया यहाँ पर ये v0 वेलोसिटी से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं और ये हमारा इस अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट दिस इज द हाइट ऑफ द ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस h, दिस रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस, दिस इज द रेडियस r, एंड दिस इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस। here the gravitational force provides the centripetal force for the circular motion of satellite। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा प्रोवाइड होता है। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज कितना होता है? दिस इज mv0 स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू this gravitational force, this is gmm upon this r square, and from here this m cancel and this r is cancel here. Now therefore this v0 is equal to square root of gm upon r, but you know that small gm is equal to, this is capital Gm is equal to कितना होता है? gr square होता है, and from figure this small r is equal to, this is the center, this radius of the orbit of the satellite small r, and this small r is equal to this capital R plus h, this is capital R plus h. Therefore this small r is equal to here r plus h. Therefore from equation 1 this v naught orbital velocity is equal to
GM की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, दिस इज GR स्क्वायर एंड स्मॉल r इज इक्वल टू दिस r प्लस h, right? Now let the satellite revolves very close to the earth surface, that is this h is equal to 0, nearly equal to 0. Therefore from equation number 2, this orbital velocity v0 is equal to, this is gr square upon r, or this is equal to square root of gr. This is square root of gr. Now on putting the values, this v0 is equal to, small g on the earth surface is, value of small g is 9.8, and the radius of earth is how much? This is 6.4 into 10 raised to power 6, and on solving this is equal to 7.9 kilometer per second, or this is nearly equal to 8 kilometer per second. Now from here it is clear that number one क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी is independent of mass of orbiting body and always along the tangent to the orbit, that is direction is key along the tangent. Here this velocity v0 is along the tangent of this orbit, and the value of this orbital velocity does not depend on the mass of the orbiting body. मतलब जो बॉडी हमारी इसके चारों तरफ जो सैटेलाइट है हमारा, उसकी मास पर डिपेंड नहीं करती है. जो बॉडी हमारी ये रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ, तो ये वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती है. फॉर्मूला दिस v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gr. तो इस फॉर्मूले के अंदर बॉडी का मास नहीं है, जो बॉडी हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, राइट. ये जो मास है यहाँ पर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G है, ये मास अर्थ का है. तो यहाँ पर ये बॉडी जो हमारी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, दैट इज सैटेलाइट, उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, राइट. नंबर टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी depends on the mass of central body and radius of orbit. This orbital velocity डिपेंड करती है जिस बॉडी के, मतलब जो सैटेलाइट है हमारा, जिस बॉडी के चारों तरफ घूमता है, सेंट्रल बॉडी के मास पर और उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है. फॉर ए गिवन
for a given planet as radius of orbit increases, the orbital velocity of the satellite decreases. Here this formula, orbital velocity is square root of gm upon r. यदि हम इस रेडियस को इंक्रीज करें, एज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डिक्रीजेज. इस फॉर्मूले के बेस पर हमने कह दिया कि जैसे जैसे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज होगी किसी गिवन प्लैनेट के लिए एज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीजेज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डिक्रीजेज. नाउ relation between orbital velocity and escape velocity. हमें रिलेशन चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में. we know that this orbital velocity is equal to square root of g into r, number one equation, and the escape velocity this ve is equal to square root of 2gr. लास्ट क्लास में ये हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला escape velocity is equal to square root of 2gr. this equation number 2 from equation 1 and 2 हमने यहाँ पर equation 2 को डिवाइड किया equation 1 से. तो दिस इज square root of 2gr upon square root of this gr. ये कैंसिल होता है तो दिस इज ve upon v naught is equal to this square root 2, or this can be written as v is equal to square root of 2 into v naught. So this is the required relation between escape velocity and the orbital velocity. Now numerical number 1. A satellite is moving around the earth with speed v in a circular orbit of radius r. If the orbit radius is decreases by 1%, then find the percentage change in its speed. हमें कहता है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है if the orbit radius is decreases by 1%, रेडियस को 1% से डिक्रीज करें, then find the percentage change in its speed. ऑर्बिट की ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड में कितना चेंज आता है ये हमें फाइंड करना है. तो we know that the orbital speed v is equal to square root of this gm upon r. now इसको हम लिख सकते हैं this v is equal to this is gm upon r power 1 by 2. here this delta v upon v, because this gm is constant, gm कैपिटल जी एंड कैपिटल एम कांस्टेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता. यहाँ पर हमारी रेडियस चेंज हो रही है तो दैट्स वाई दिस 1/2 हियर पावर इज 1/2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर. ना परसेंटेज चेंज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना, तो दिस इज डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू दिस 1/2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100. राइट. क्वेश्चन में कहता है कि रेडियस में 1% से चेंज आता है, तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज है, स्पीड के अंदर जो परसेंटेज चेंज है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 1%.
रेडियस में कितना चेंज 1%, देयरफॉर पुट हियर 1% एंड दिस इज इक्वल टू 0.5%। तो हमारी ऑर्बिटल स्पीड में कितना चेंज 0.5% चेंज आया। अब ये डिक्रीज या इंक्रीज होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारी रेडियस को यदि हम क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं तो स्पीड हमारी ऑर्बिटल स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। यदि रेडियस को डिक्रीज करते हैं तो ऑर्बिटल स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये कह सकते हैं कि एज रेडियस आर डिक्रीजेज द ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, दिस इंक्रीजेज, ऑर्बिटल स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाती है। कितना इंक्रीज हो जाती है 0.5% से इंक्रीज हो जाती है यदि हम रेडियस को कितना 1% डिक्रीज कर दें। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल नंबर 2, a satellite is revolving in a circular orbit at a height h. Suppose this earth सरफेस से हाइट h पर एक सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। दिस सैटेलाइट सपोज अर्थ सरफेस से h हाइट पर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस कैपिटल R and given that this h is very very less than capital R, h is very very less than capital R, the minimum increase in its orbital velocity, इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी में कम से कम कितना इंक्रीज करें so that the satellite could escape from the earth surface या अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। तो किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले हम we know that ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल Gm अपॉन r प्लस h, but given that this h is very very less than r, therefore this orbital velocity v0 is equal to this is square root of Gm upon r. Now the velocity required to escape, that is escape velocity कितनी होगी जानते हैं आप। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2Gm अपॉन r प्लस h और दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2Gm अपॉन r, बिकॉज हेयर आल्सो h इज वेरी वेरी लेस देन r, राइट। तो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड दिस इज एस्केप वेलोसिटी। ये हमारा कोई भी यहाँ पर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है v0 स्पीड से, तो कितनी वेलोसिटी इंक्रीज करें जिससे कि एस्केप हो जाए। देयरफॉर इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट कितना होगा, दिस इज ve माइनस v0 और दिस इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू पुट करें। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ Gm अपॉन escape velocity is this twice of this Gm upon this r minus orbital velocity is how much, square root of Gm upon r, right। दोनों को माइनस करने पर कॉमन इज here this is square root of Gm upon r or from here this is root 2 and this 1, but you know this Gm is equal to क्या होता है, Gm is equal to Gr square, therefore this increase in velocity is equal to this is square root of Gr into root 2
-1, तो हमें इतनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है सैटेलाइट की जिससे कि वो सैटेलाइट अर्थ सरफेस से या कहिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो सकता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल नंबर 3, a bullet is fired vertically upwards with velocity v from the surface of the spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of the planet. If the escape velocity of the planet is v is equal to v into square root of n, then find the value of capital N and ignore the energy loss due to the atmosphere. Important question है JEE Advance 2015 से लिया। Now in this question given that क्या given है देखिए, here this planet सपोज करते हैं, क्वेश्चन में कहता है planet a bullet is fired vertically upward with the velocity from the surface of the spherical planet. यहाँ से हमने एक बॉडी को, एक बुलेट को फायर किया सरफेस से, प्लेनेट के सरफेस से, एंड सपोज दिस वेलोसिटी इज v हियर, दिस वेलोसिटी v एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट A ऑन द सरफेस, राइट, और ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर दिस पॉइंट इज सपोज हियर B, पॉइंट A पर हम सपोज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लेनेट्स ग्रेविटी इज स्मॉल g, और पॉइंट B पर जाकर ये हमारा होता है दिस इज मैक्सिमम हाइट है, तो सपोज दिस इज जी डैश है, और मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है ना। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, डिस्टेंस हमारी x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लेनेट टू पॉइंट B, दिस डिस्टेंस इज x, राइट। ये हमारा प्लेनेट है, इसका सेंटर हमारा यहाँ पर, दिस सेंटर एंड दिस रेडियस ऑफ द प्लेनेट, राइट। ना क्वेश्चन में कहता है ये कि पॉइंट बी पर जो इसका ग्रेविटी है, प्लेनेट्स ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी है, दिस जी डैश इज इक्वल टू, हमें गिवन है यहाँ पर 1/4 ऑफ जी। क्वेश्चन में गिवन है बी पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लेनेट ग्रेविटी है जी डैश, वो सरफेस की वैल्यू का 1/4 है। बट वी नो दैट जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है दैट इज gm अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो दिस इज r प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर टू पॉइंट B, दिस इज r प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज 1/4। g की वैल्यू हमारी ऑन द अर्थ सरफेस कितना होगा, gm अपॉन r स्क्वायर होता है। अब इसको आप लिख सकते हैं gm से, gm कैंसिल दिस, और फ्रॉम हियर दिस इज r प्लस एक्स होल स्क्वायर is equal to, this is 4 into r square. Now on taking square root of both sides, so this is r plus x is equal to 2 into r, right, or from here this x is equal to r. तो पॉइंट B की जो हाइट है that is from the surface of the planet is r. Now energy conservation using एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा, एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। एनर्जी दोनों जगह पर इक्वल, बट एनर्जी A पॉइंट पर हमारी कितनी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A, एंड हियर आल्सो potential plus kinetic energy at point B. Now potential energy at point A, that is on the surface of the planet. Potential energy आप जानते हैं, this is minus gmm upon capital R. M is the mass of the bullet. जो बुलेट हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास स्मॉल m, और दिस कैपिटल M is the mass of the planet. तो दिस इज माइनस gmm अपॉन R प्लस जो बुलेट यहाँ से हमने प्रोजेक्ट की उसकी काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज माइनस gmm अपॉन दिस इज R प्लस कैपिटल R, बट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B
velocity 0, therefore kinetic energy at point B is equal to 0. Therefore this half mv square is this is minus gmm upon this 2r and this is plus here. इस टर्म को इधर लेकर आते हैं तो this is plus gmm upon this r and therefore this half mv square is equal to this is minus 1 by 2 and this is plus 1. तो हमें यहाँ से मिलता है प्लस का gmm अपॉन 2r. m से ये m कैंसिल होता है तो दिस कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ इस 2 से ये 2 भी कैंसिल होता है तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r. We know that s के वेलोसिटी हमारी होती है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r and this can be written as this square root 2 into this root gm upon r और this can be written as v is equal to square root 2. अब ये जो वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट gm अपॉन r इसकी वैल्यू हम ये v यहाँ पर रखते हैं. राइट नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. गिवन दैट हमें गिवन क्या है दिस s के वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट n इंटू v. नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग दिस 1 and 2 तो हियर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2. हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. हमें ये यहाँ पर गिवन था v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू v. दोनों को कंपेयर किया हमने तो फ्रॉम हियर दिस वैल्यू n इज इक्वल टू 2. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू.